Today the topic which we will be discussing are pronouns and WH questions. It's a very interesting thing. WH questions means those questions which we which starts from WH, like what, where, when, who. Okay, they all these are the questions which are whose. So there are total 5, and some of the people, they also consider how to be a part of WH questions, but you can add it. It's up to you. Now, pronouns are what? Pronouns are the words. First of all, we like to see, recalling that we have done had for the position and illness, and you see in the past, and will have for future. This is the thing which we have done in the last class. So first of all, with the vocabulary, then the phrases, and then inshallah ta'ala will enter to the pronouns, right? The topic of pronouns, and we'll see in detail the types of pronoun and how it is used properly. So we'll be saying all of that, right? Okay, so the first word today, I would like Miss Yasmin. Yasmin, please unmute yourself and read the starting 4 words only. Remember, Yasmin, only starting 4 words, right? Okay? Yes, sir. Ji. Catastrophe. No, Tabahi. it's not catastrophe. It is read as catastrophe. Sorry, ma'am. Catastrophe. Catastrophe. Okay, hold on. Let me set the size of the image so that you can see it clearly. Is it clear now? No. Can you see the screen? No, ma'am. You can't see the screen? No, ma'am. How come? It's showing on my now. No. Everybody is saying yes. Please tell me in the chat box, is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Yes, Yasmin, starting 4 words, please. Catastrophe. And Catastrophe. 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 Yes, catastrophe, right? Tabahi. Surreal. 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 गैर हकीकी. Notorious. बदनाम. Notorious. Notorious. Badnaam. ठीक है? Notorious. And Badnaam. labyrinth. Labyrinth. No, this will be read as Labyrinth. yes, labyrinth. Labyrinth. Yes. Yeah. भूल भुलैया. Bhool Bhulaiya. Do you know what is Bhool Bhulaiya? Do you know? Have you heard of this term, Bhool Bhulaiya? Okay, so I'm starting with catastrophe. Catastrophe का मतलब होता है तबाही, ठीक है? Of complete destruction. You can say, like for example, in 1995, the earthquake in the northern area was a catastrophe, यानी complete तबाही और complete वो था, ठीक है? So you can use the word like this. Then we have got the next word, surreal. Surreal means, and is there anybody who knows the meaning of surreal? कोई बच्चा है ऐसे जो बताना चाहेगा? It's a very good word, like normally used surreal, right? इसका मतलब होता है गैर हकीकी. Now, surreal refers to something that is beyond your ordinary imagination, or it's beyond realisticness, right? Fantastically or dream-like thing. ठीक है? Having a strange quality or setting or idea, right? So that's called surreal. जो हकीकत से बहुत ही दूर हो. For example, you can say the surreal experience of walking through the abundant theme of the park. Okay, and you can also say like it is unusual or unexpected. ठीक है, dream like चीज जो ख्वाब ना हो यानी कि जो हकीकत ना हो. So that is called. Then we have got notorious. Notorious means बदनाम. ठीक है, बदनाम का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो जिसकी नेक नामी नहीं होती, हम उसे क्या कहते हैं? We call that person notorious, right? You all can say this after me. ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप मेरे बाद इसको रिपीट कर सकते हैं. अच्छा, नोटोरियस मींस फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड. देखिए, दो तरह की शोहरत होती है. एक होती है फेमस, समबडी हु इज फेमस, ठीक है, एंड पॉपुलर का लफ्ज भी हम यूज करते हैं, ठीक है. और नोटोरियस इज स्पेशली यूज फॉर बैड फेम, यानी कि बुरी उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर चोरी करने में माहिर है, कोई अगर कोई गलत काम करने में माहिर है, तो उसके लिए फिर हम नोटोरियस का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, एक ऐसा स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड रास्ता जिसमें कोई चीज चली जाए तो उसका वापस आना मुश्किल हो जाए, ठीक है. नाउ आई वुड लक वजीहा
Please unmute yourself and read the last 4 words, Fajia. Assalamu alaikum. Walaikum assalam ji, Fajia. Malicious, Very good. Meaning भी पढ़िए. sagacity, Please read the meanings as well. जी बदनीयती पर मबनी, जी. sagacity, समझदारी, Okay. audacity, दलेरी, जीनत. ठीक है, वेरी गुड. ओके नाउ, सो मलेशियस मींस सम, इसका मतलब होता है हसद रखना, कीना रखना. ओके, जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको मलेशियस यानी बदनीयती होती है जिनके अंदर, ठीक है, वो आपका अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं. बज़ाहिर तो वो आपको शो कर रहे होते हैं कि वो आपके साथ अच्छे हैं, बट इन रियल दे डोंट थिंक गुड अबाउट यू. देन वी हैव गॉट sagacity. sagacity का वर्ड जो sagacious से निकला है. sagacious का मतलब होता है बहुत ज़हीन, समझदार, ठीक है. और sagacity जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उस एडजेक्टिव पर. sagacious एडजेक्टिव है और sagacity उसका नाउन है जिसका मतलब है समझदारी, ठीक है. Then we have got audacity. audacity का मतलब होता है बहादुर, दिलेर, dauntless, okay, and brave, courageous. ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. और जिन्नत मींस मिलता है किसी चीज का बहुत ही ज्यादा पीक, ये जीनत, ये बहुत ज्यादा उसकी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ सके, ठीक है. एंड में हम इसके थोड़े से सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेंगे. फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन द टॉपिक व्हिच वी हैव टू डू टुडे बिकॉज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो इट्स अ सिंपल टॉपिक बट अ लॉट ऑफ पीपल make very journal mistakes in this topic. Okay, so now we have got this जी. तो ये मैं मुकद्दस please read the starting two phrases for us. He was walking on eggshell when talking about her friend's deceased wife. वो अपने दोस्त की deceased wife. deceased wife का मतलब क्या है? जो मर चुकी है, फौतशुदा. ओके, वो अपने दोस्त की फौतशुदा बीवी के बारे में बात करते वक्त बहुत मोहतात था. जी मोहतात था, केयरफुली. Don't make castles in the air, you need to act as well. हवा में किले ना बनाएं, आपको भी अमल करने की जरूरत है. ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ वी हैव इकरा प्लीज. लास्ट वालेकुम अस्सलाम. इकरा लास्ट 3 sentences पढ़िएगा प्लीज. Okay. The little child blew a kiss to her mother. छोटे बच्चे ने अपनी माँ को बोसा दिया. She was covered in green paint from head to toe. वो सर से पांव तक सफेद रंग में ढकी हुई थी. What do you mean you haven't prepared for exam? You are bringing on to a fight. आपका क्या मतलब है कि आपने इम्तिहानात की तैयारी आप बगैर तैयारी के आ रहे हैं. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ओके जी. सो हियर आर सम. शानजे आपने अभी ज्वाइन किया है. शानजे प्लीज फ्रेजेस रीड कीजिएगा क्विकली. वालेकुम अस्सलाम जी शानजे. Okay. He was walking on eggshell when talking about his friend's deceased wife. Yes. Don't make castle in the air. You need to act as well. The little child blew a kiss to her mother. Blew. ठीक है जी. She was covered in green paint from head to toe. What do you mean you haven't prepared for exams? You are bringing a knife to a gunfight. वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड. ठीक है जी. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहला आपके पास है वॉकिंग ऑन एगशेल्स. वॉकिंग ऑन एगशेल्स का मतलब देखिए जब आप अंडों के छिलकों पे चलेंगे तो क्या होगा? क्रैक की आवाज आएगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो शेल मजीद ना टूटे तो आप कितनी ज्यादा एहतियात करेंगे, ठीक है. तो ये फ्रेज इसलिए यूज किया जाता है कि किसी बात को, किसी उस काम को बहुत ही ज्यादा संभल के कहना. आप सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि वो अपने दोस्त की फौतशुदा बीवी, ठीक है, जिससे वाइफ के लिए बहुत ज्यादा मोहतात होके बात कर रहा था, इसलिए कि उसको बुरा ना लगे, वो दोबारा से अपनी बीवी के गम को लेके गमज़दा ना हो जाए, ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है जी. इसको हम क्या कहेंगे? वॉकिंग ऑन द एगशेल्स. यू सी
when you're talking to your parents, your old age parents especially, so you should walk on eggshells. Okay, and you see, I am walking on eggshells when I talk with my younger kid. Okay, about money or about anything you can say, right? Then we have the don't make castles in the air. Castles में याद रखिएगा टी जो है वो साइलेंट है, ठीक है? कासल, कासल्स पढ़ेंगे, किला, यानी हवा में किला नहीं बनाओ. You need to act, or you need to act as well, right? तुम्हें अमल की भी जरूरत है. What is the problem of the young generation nowadays? Like everybody is willing to be everybody is willing to be rich, everybody is willing to be successful, but nobody is sacrificing anything. ठीक है, कोई भी आपको सेक्रीफाइस करने को, अपना टाइम, अपनी मेहनत सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? हवा में किले बनाना, जिसे कहते हैं शेख चिल्ली. ठीक है, ख्याली पुलाव बनाना. मैं ये कर लूंगा, अगर मैंने एमबीए कर लिया तो मेरी वहां नौकरी लग जाएगी, वहां लगते ही मैं अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई कर दूंगा, और वहां से मैं कनाडा चला जाऊंगा, blah blah blah. So it's making castles in the air. If you are not taking the actions, it means your desire or your wish is, you see, इसको कहते हैं wishful thoughts, यानी कि आपकी सिर्फ ख्वाहिशें ही रह जाएंगी, काम नहीं होगा. Then we have got the little child blew a kiss to her mother. देखिए, ये blew a kiss बेसिकली सेकंड पास्ट टेंस से, blow का सेकंड फॉर्म होती है blew, ठीक है, और थर्ड होती है ब्लोन. तो ब्लू का मतलब है छोटे बच्चे ने, जो हम हवा में नहीं लोगों को कहते हैं यूं करके हम किस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्लोइंग अ किस इन द एयर. ओके, और यू कैन सिंपली से ब्लोइंग अ किस. यहाँ पे हमने इसका पास्ट टेंस यूज किया है, द चाइल्ड ब्लू अ किस टू हर मदर, राइट. इसके बाद यानी कि बच्चे ने, अब छोटे बच्चे ने अपनी माँ को बोसा दिया, ठीक है. शी वॉज कवर्ड इन ग्रीन पेंट फ्रॉम हेड टू टो. टोस, देखिए आपके पास हाथ है, हाथ के आपके पास हाथ पे कितनी फिंगर्स है? यू हैव गॉट 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स, ठीक है. तो जो पाँव की जो होते हैं अंगूठा या पाँव की जो उंगलियां, उनको हम टो कहते हैं. हेड टू टो का मतलब है सर से पाँव तक, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ओ माय गॉड वो तो सर से पाँव तक खून में लथपथ था, ठीक है. एक्सीडेंट के वक्त वो सर से पाँव तक खून में लथपथ था, ठीक है. या पूरी इसी तरह आप कह सकते हैं शी वाज कवर्ड इन ग्रीन पेंट फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है. वो पूरी सर से पाँव तक वो सब्ज रंग के अंदर डूबी हुई थी या ढकी हुई थी, ठीक है. Then we have got bringing a knife to a fun gun fight. बड़ा इंटरेस्टिंग वन है. फॉर एग्जाम्पल, इस फ्रेज या इडियम का मतलब ये होता है कि आप तैयारी के बगैर मैदान में उतर जाएं. देखिए, जब आप मैदान में तैयारी करके उतरेंगे, इसका मतलब ये कि आपको पता है अगर आप पिछले जमाने में और तलवारों से और तीरों से अगर जंग लगती है तो ऑब्वियसली आप वो लेकर आएंगे. लेकिन अगर आपको पता है कि आप मॉडर्न दौर में हैं और गन्स और बम वगैरह सब है, और अगर आप छुरी लेके चले जाएं, तो क्या आपने कुछ तैयारी की जंग की? नो. सो इट इज idiomatic structure. It is an idiomatic structure which says bringing a knife to a gun fight. ठीक है, ये तंजिया सार्कास्टिक जुमला है. अच्छा, now I would like everyone to make at least one sentence of you their own choice. ठीक है, कोई भी आप पिक कर सकते हैं, कोई भी वर्ड, एंड देन मेक अ सेंटेंस. I'm starting with मुकद्दस. Unmute yourself, मुकद्दस. Yes. जी. He wear blue shirt and he wear blue coat from head to toe. फिर से बोलिएगा, मुझे समझ में नहीं आया. He wear blue coat from head to toe. अच्छा, अब आप ये प्रेजेंट में बोलना चाहती हैं या उसकी आदत है या उसने आज पहना है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपके सेंटेंस Present. में. Present. 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 प्रेजेंट में बोलना चाह रही है, रिपीट कीजिएगा सेंटेंस. He wear blue coat देखिए, from अगर head ये to toe. ही है तो फिर इसके साथ एस आना चाहिए, ही वियर्स, या फिर सेकेंड फॉर्म आप लगाइए ही वोर. Okay. ठीक है Okay. जी. ओके, नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? इकरा. कोई भी एक अपने लिए चूज कीजिए फ्रेज और उसका सेंटेंस बनाइए. Walking on eggshells. ओके, He is walking on he is standing walking on eggshells in front of his father. सॉरी. He is walking on eggshells in front of his father. ओके, वेरी गुड. ठीक है, बहुत मतलब मोहतातों के बात है, जबरदस्त. ठीक है, आप ये कह सकती हैं ही वाज वॉकिंग ऑन द सीशेल्स व्हेन ही टॉक्स टू हिज फादर इन लॉ. ओके. Okay. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी हैव मिस शानजे. शानजे मेक कासल्स इन द एयर का बनाए.
जी शानजे। make castles, castles, Nissan castles in the air, हवा में महल बनाना, किला बनाना, ठीक है। castles in the air. I told him he should stop building castles in the air. वेरी गुड सेंटेंस। इसको थोड़ा सा और अच्छा करें शानजे, कि मैंने उसको मना किया कि हवा में किला बनाना बंद करो और फटाफट अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करो। अब आप इसको कैसे बोलेंगी? अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जी, कोई बिजनेस स्टार्ट करो। You should start your own business. Don't stop making castles in the air. You need to take action Okay, and you need start to. your business. आप इस तरह बोल सकते हैं। Very good. Okay, good Okay. sentence शानजे। Very good. Okay, now we have Miss Yasmin. आप इसका बनाइए from head to toe. After the accident, the people were covered in blood from head to toe. Okay, very good. Okay, Wajiha. Now Wajiha, you can make blow a kiss. Ji. My son blow a kiss on my face, to my face. नहीं, रिमेम्बर आप क्या बोलना चाह रही है? यानी कि मेरा बेटा मुझे बोसा देता है, इस तरह आप कहना चाह रही है प्रेजेंट में, ये उसकी आदत है। तो अब आप दोबारा से बनाइए सेंटेंस। My son blew a kiss. नो, अब on my face. my son इज सिंगुलर। हमने प्रेजेंट डेफिनेट में क्या कहा था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब में एस लगेगा। माई सन ब्लोज। Blows. जी, माई सन ब्लो। अगर आप Present उसके में blows. जी, क्यों? अगर आप रिपीटेड एक्शन की बात करिए और वो हमेशा ही ऐसा करता है, देन यू विल से माई सन ब्लोज a kiss to me whenever I'm leaving my house. जब भी मैं घर से बाहर जा रही होती हूँ तो मेरा छोटा बेटा मुझे बोसा देता है। Is it okay, वजिया? Yes, ma'am. Okay, okay, thank you, Wajiba. Now, who is this Antac? Unmute yourself and please rename yourself. Who is that Antac? अस्सलाम वालेकुम मैम। आवाज नहीं आ रही आपकी, बच्चा थोड़ा सा तेज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अभी भी आवाज कम है। कौन बात कर रहे हैं? मैम ईशा। ईशा, बच्चा आपने रीनेम नहीं किया अपने आपको आज? मैम वो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया ना, तो उसके अंदर हमने पहले मोबाइल के अंदर कनेक्ट किया तो बैटरी ऑफ हो रही थी, तो हमने भी इसके अंदर हमने चले, करना भूल गए। हमने आपका नाम रीनेम कर दिया ईशा। ठीक है जी, अब चलिए सेंटेंस बताइए। ईशा किसका बनाएंगी? ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। मैम हेड टू टो का बना है। जी चलो, हेड टू टो का बनाइए। ओके। she went to dress them from head to toe. You see, she was wearing a maxi from head to toe. Yes ma'am. Okay, you can say like that, and there are a lot of different ways. Okay ji, so I'm moving towards another side. If we get the time, we'll repeat the one. Now the main topic of today is pronoun, right? Pronoun is a word which is used in place of a noun in order to avoid the repetition of noun. A very simple example which you can say is like, for example, somebody Aslam, I'm talking to about Aslam, that Aslam is a boy. He studies in grade 6. He's a very bona fide student. He's very studious. He's very hardworking. ठीक है ना? तो ये जो ही मैं यूज कर रही हूँ इन प्लेस ऑफ असलम आफ्टर माय फर्स्ट सेंटेंस, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। देखिए गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो, जगह हो, चीज हो, या कोई आइडिया या क्वालिटी, उसके जो नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन, प्रो का मतलब है की जगह, इंस्टेड ऑफ। तो प्रोनाउन का मतलब ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो अब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप अच्छा, फॉर एग्जांपल ये यू, आई, अगर दो हैं और उसमें आप भी शामिल है तो वी। इट, जिनका जेंडर पता नहीं होता हमें कि मेल है फीमेल है, एनिमल्स वगैरह, इन चीजों के लिए हम इट यूज करते हैं। देन वी गॉट ही, शी और दे का मतलब है, अगर देखिए दे और वी में क्या फर्क है? वी में आप भी शामिल होते हैं और दे में आप शामिल नहीं होती। येलो ड्रेस वाले बेसिकली आप हैं इस पिक्चर के मुताबिक। ठीक है, तो येलो वाला क्या शो कर रहा है? किसी और को। आई शो कर रहा है आपको, और वी शो कर रहा है आप दोनों को। इसका मतलब वी के अंदर आप आई भी शामिल है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेंटरी अगर आप दे को देखें तो दे के अंदर आई शामिल नहीं है।
आप बोलेंगे वो पिकनिक पर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप नहीं जा रहे। लेकिन इफ यू आर सेइंग कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, इसका मतलब है यू आर आल्सो इंक्लूडेड, राइट? I think the concept is clear. Now, this is the English pronouns chart. There are two ways you can use pronouns. In the case, subjective case, which is called subject pronouns, and in object case, which is called object pronouns. Now, अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का इसका जरा थोड़ी सी जरा इसकी कहानी समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है फर्स्ट पर्सन, का मतलब होता है जो कि बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बात कर रहा हूँ। इस वक्त कौन बोल रहा है? मैं। इसका मतलब मैं क्या हूं? मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन कौन होता है? आप लोग जो सुन रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मी, सेकंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन वो लोग होते हैं जो कि हम वहां मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सऊदी अरब जा रही है हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। अब वो, मैं आपसे ही बात कह रही हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आपसे, यानी कि बोलने वाला स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन, और जो मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन के लिए अगर आप सब्जेक्ट केस में यूज करना चाह रहे हैं प्रोनाउन को, तो वो किस शक्ल में यूज होगा? आई। ऑब्जेक्ट केस में मी। ऑब्जेक्ट केस का मतलब, आप इस आसान अगर अल्फाज में बहुत देसी तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो ये इससे जुमला शुरू नहीं होता, ठीक है, ये जुमले के किसी बीच में या आखिर में आपको जो प्रोनाउन होता है आई, तो वो मी की शक्ल में मिलता है। फिर आपको कोई पोजीशन शो करना है, कोई जिसे कहते हैं लाइक कब्जा करना, क्या कहते हैं इसको, किसी चीज पे पोजीशन, यानी कि आपने वो शो करनी है कि ये मेरी है, तो आप क्या बोलेंगे? माय। और अगर आपको ना एज अ प्रोनाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है माय, माय बुक। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले लगेगा और नाउन को डिफाइन करेगा क्या? माय बुक, माय हाउस, माय फ्रेंड्स, माय कप, माय वाटर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा? जो कि किसी नाउन की जगह लेगा, जो किसी नाउन की जगह लेके उसका, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे बुक नाउन है और माइन उसका क्या शो कर रहा है कि वो मेरी है, लिहाजा हम उसको आखिर में लगाएंगे। ठीक है, द बुक इज माइन। और अगर रिफ्लेक्स प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं आसान लफ्जों में जिनके आगे सेल्फ लगा होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ। अब योर सेल्फ, ठीक है, ये आपको योर सेल्फ में देखिए दो दो किस्म के योर सेल्फ नजर आ रहे हैं। एक आप यानी तुम, या आप कह रहे हो कि मैं, और एक योर सेल्फ का मतलब है एक से ज्यादा, यानी आप ज्यादा लोग अगर बात करो तो होंगे तुम लोग सब मेरे दोस्त हो, तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन मैं कहूंगी तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो यू आर माई फ्रेंड। ओके, ठीक है, और योर सेल्फ जो है फिर उसी के हिसाब से यूज होगा। थर्ड पर्सन के लिए हम यू ही यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह अगर यूज करना हो तो हिम। ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट हिम, ठीक है, दिस इज हिज बुक। ठीक है, इस तरह आप इनको यूज करेंगे। अच्छा, फॉर हर क्या है? शी के लिए हर यूज होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी हम हर यूज करेंगे और पॉजिटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी, और रिफ्लेक्स में ये हर सेल्फ हो जाएगा। सिमिलरली इट और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए इट्स हो जाएगा। जब ये प्रैक्टिस हम करेंगे, इस चार्ट को आपने बार बार पढ़ना है और याद करना है किसी तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले चार्ट्स बताया था। आप बोलेंगे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, I, me, my, mine, myself, you, your, yours, yourself, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, right? So इस तरह आपको इस चार्ट को प्रैक्टिस करना है। Now pronoun as a subject, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो ये कि जब प्रोनाउन नाउन की जगह आए और मेन स्टार्टिंग सेंस में उसका जिक्र हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? ही। ठीक है, जैसे इस जुमले में दिस इज जॉन, तो जॉन की जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज किया? ही इज अ स्टूडेंट। जॉन इज अ स्टूडेंट, जॉन की जगह ही, मतलब क्या? ही हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये है एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क आप सबको पता है? प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग ऑनलाइन टू स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मैराथन बैच नंबर 4 फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो मैं जो हूँ, आई एम टीचिंग, मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, किसको टीच कर रही हूँ? आई एम टीचिंग यू। तो आप लोग क्या हो? आप लोग ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आप पे काम हो रहा है। और वर्ब क्या है? जो पढ़ाना जो काम हो रहा है। ठीक है, आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम ईटिंग बर्गर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ईटिंग क्या है? वर्ब है। और बर्गर क्या है? ऑब्जेक्ट है जो खाया जा रहा है। आई एम आयरनिंग माई क्लोथ्स,
I am ironing my clothes. I क्या है? Subject है, ironing action है, और clothes क्या है? Object है जिस पे काम हो रहा है. ठीक है जी. तो here we have got a lot of examples for pronouns to work as subject. Like you are a good boy. Naila is my friend. She's a pretty girl. My pet is a rabbit. लेकिन यहाँ my pet is a rabbit है. Rabbit का आपको gender नहीं पता कि ये male है female है, तो इसके लिए आप it use करेंगे. It is very cute. Some students came early today. They are going to clean the classroom. ठीक है जी. Okay. So now I want कौन हमारे पास है जो है आज दुआ क्लास में प्रेजेंट नहीं है. दुआ इज नॉट देयर इन द क्लास टुडे. ओके ठीक है. ईशा, ईशा जी मुझे ये पूरी स्लाइड पढ़ के बताइए आपको क्या समझ में आया इससे. जी ईशा. मैम मुझे इससे ये समझ में आया, आपने फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बताइए हमें, जैसे कि आई की मी, माय और माइन और माई सेल्फ. जी जैसे कि यू और योर सेल्फ के अंदर. ठीक है जी, बेहतरीन. मैम जैसे कि कुछ सेंटेंस होते हैं जो इसके अंदर चेंज नहीं होता, जैसे कि कुछ बोलते हैं कि वी हमारा चेंज नहीं होता. कैसे बताइए मुझे, कोई एग्जांपल दीजिए ईशा. तो ये मैम सारी फॉर्म सेम आती है, ये बोलते हैं. वी की जो दूसरी फॉर्म है ना वो अस है. जी मैम. They are going to the picnic with us. We are going to the picnic with them. ठीक है. वी के लिए हम अस का वर्ड यूज करते हैं, अस, यूएस, अस. ओके मैम. ठीक है. चल अच्छा मुझे स्लाइड पढ़ के बताएंगी ईशा. यस मैम. जी. Pronoun as a subject plus verb plus object. This is John. John is a student. This Very is good. John. He is a student. You are a good boy. Naila is my friend. She is a pretty girl. My Okay. pet is a rabbit. It is very cute. Some students came early today. They are going To clean the classroom. Punishment मिली है उनको. to clean the classroom. नहीं सॉरी, बल्कि अर्ली आया ना. नहीं अर्ली पे तो पनिशमेंट नहीं मिलती. सम स्टूडेंट्स केम अर्ली टुडे. जल्दी है तो लिहाजा वो क्या करेंगे, क्लास साफ करेंगे ताकि बाकी बच्चों के लिए क्लास साफ हो जाए. ओके सो हियर आर सम एग्जांपल्स. ठीक है. हियर आर सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंप्यूटर. इट्स वेरी यूजफुल. अब आप देखिए, मैं चाहूँ तो इस जुमलों को इस तरह भी बोल सकती हूँ. आई हैव अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल. कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव. कंप्यूटर इज ऑन माई टेबल. कंप्यूटर इज नॉट वेरी बिग. कंप्यूटर इज पोर्टेबल. इज ठीक है. पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब समझते हैं. पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले सके. फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन्स, दे आर पोर्टेबल्स, राइट. ये चीजें पोर्टेबल होती है. ओके सो यहाँ पे कंप्यूटर जो कि एक नाउन था, उसको बार बार इस्तेमाल करने को अवॉइड करने के लिए हमने ये वर्ड इट यूज किया. ये इट्स का मतलब है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है. ठीक. इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट. ठीक है. तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर को मैंने पहले एक दफा अपने ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दिया इन द पैराग्राफ, एंड देन in the you see after lines in the other lines of the paragraph I didn't use the word computer again and again. Why? Because I've replaced it with it, which is a proper pronoun. क्योंकि कंप्यूटर का भी कोई जेंडर नहीं होता. जब हम जेंडर कंफ्यूज होते हैं वहां पे मेट लगाते हैं. ठीक है. तो इट इज वेरी यूजफुल. अब मैं इसको किस तरह पढ़ूंगी. I have a computer. It's very useful. It's expensive. It's on my table. It's very big. It's not very big. It's portable. Right? और नीचे हमारे पास एक और पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ को मैं चाहूंगी मुकद्दस आप रीड कीजिए. There is a pet dog in my home. It's a small dog. It has a small tail. It has two small eyes. It's in the kennel. It's like to play with me. अच्छा, कैनल किसे कहते हैं. उसका घर टाइप से बना था. जी जी, घर जो होता है. देखिए जैसे हर जानवर की एक जगह होती है ना रहने की. तो जो डॉग के जो घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैनल कहते हैं. ठीक है. जैसे आपके लिए वो जो कैट्स होती है वो बास्केट में रहती हैं. ठीक है. इस तरह करके सारी चीजें डिफरेंट उसमें जगहें होती हैं. ओके. नाउ प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट. अब हमने सब्जेक्ट की बात कर ली. अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज होगा. These are my students. These are my students. I can teach my students. These are my students. देखिए यहाँ पे क्या है, These are my students. ठीक है. I can teach my students. और नीचे देखिए These are my students. I can teach them.
देम किसकी जगह है, किस चीज की प्लेस लिया, माय स्टूडेंट्स की, राइट। लिहाजा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट में आप खुद तो शामिल नहीं है ना, टीचर तो स्टूडेंट में शामिल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि टीचर शामिल नहीं होगा। लिहाजा आपने उसकी जगह देम यूज कर लिया, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट की जगह पे नहीं यूज हुआ, लिहाजा आप इसको क्या करेंगे, आप इसको देम यानी ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में लेंगे। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस के कौन कौन से होते हैं, मी किसका होता है, आई का, यू का यू ही रहता है, वी का अस होता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट, राइट। ओके, सो नाउ आई वांट यास्मीन, मिस यास्मीन प्लीज हमारे लिए सेंटेंसेस रीड कीजिएगा। Yes, ma'am. Pronoun as an object, subject plus verb plus object. These are my students. I I can teach my students. These are my students. I can teach them. Nimal has a dog. Nimal took in to टुक a इट vet. टू अ वेट, अच्छा एक सेकेंड, यास्मीन वेट किसे कहते हैं, Animals. एनिमल के डॉक्टर को वेट कहते हैं, अच्छा vet. जी जी sorry. ठीक है। एक तो WET वेट होता है उसका, जी जी उस वेट का मतलब तो गीला होता है ना, ये जी vet. VET वेट इसका मतलब है जी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर जी। I have some English books. I can give them to you. Okay. There are some students in front of the principal office. The principal punished them. Okay. The cake was delicious. Where did you buy? Where It. did you buy? के का गैर Right. जेंडर नहीं है तो हम उसके लिए इट यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया। देखिए रेड से हाईलाइट हुआ है, ये बेसिकली वो नाउन है जिसकी जगह ये प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पे निमल के लिए इट नहीं यूज हुआ, बल्कि डॉग के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश बुक्स के लिए क्या यूज हुआ है, देम, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए देम यूज हुआ है, और यहाँ पे केक के लिए इट यूज हुआ है, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। Okay, now there are some more examples, and for this example, I would like वजीहा क्लास में नहीं है, वजीहा आर यू इन द क्लास? Okay, Ikra, जी मिस इकरा, unmute yourself and read the examples for us. Okay. I am teaching you at this time. The police will suspect you. Father blamed them. I saw them. She will marry him. The principal appointed him as the president. We advised her. They will slap her. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आप इनकी मीनिंग्स बता सकती हैं इकरा मुझे? Yes, ma'am. बताइए, पहले रीड कीजिए फिर ट्रांसलेशन बताइए। Okay. Okay. I am teaching you. मैं आपको पढ़ा रही हूँ at this time. This time. The police will suspect you. Police ने आपको गिरफ्तार करेगा। Father blamed them. फादर हमें ब्लेम करेंगे, इल्जाम देंगे। ऐसा देन हम उन्हें देखेंगे। मैं सस्पेक्ट, she will marry ये भी द पुलिस विल सस्पेक्ट यू का फिर से ट्रांसलेशन बताइए। the police will suspect you. पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। नो नो, अरेस्ट तो नहीं लिखा हुआ, सस्पेक्ट लिखा हुआ है। Suspect? सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना। पुलिस क्या तुम पे है? पुलिस तुम पे शक करेगी। शक। ओके ओके, चले आगे चले। यस ओके। फादर ब्लेम्ड देम। फादर उन्हें इल्जाम ठहराएंगे। आई सॉ देम हम उन्हें देखेंगे। शी विल मैरी हिम वो नहीं नहीं, एक्सक्यूज शादी मी एक्सक्यूज करेगी। मी, फादर ब्लेम्ड देम, ये सब पास्ट टेंस Yes, से ma'am. सेकंड फॉर्म लगी हुई है इकरा। यस तो यस बाप यानी फादर ब्लेम्ड देम, यानी कि बाप ने उन पे इल्जाम लगाया। फादर ने आई सॉ देम, इल्जाम मैंने उनको लगाया। देखा। Yes. देखा, ये भी पास में। जी जी, She will marry him वो उससे शादी करेगी। वेरी गुड, The आगे चले। people appointed him लोग उसे अपॉइंट कर एज द प्रेसिडेंट सदर के सामने। No, We no, 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 advised no, her. no, 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 Her. no, 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 no. Again, translation. The people appointed Okay, him ma'am. as the president. क्या मतलब है? The people appointed him लोगों ने Appoint, उसे जी। अपॉइंट किया। Appointed का मतलब As होता है the किसी, president. appoint का मतलब होता है किसी को कोई ओहदा देना। आई एम Yes, appointing you as a yes, principal ma'am. of my school. मैं आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का ओहदा देती हूँ,
ठीक है, अपॉइंट मतलब होता है ना, हम Yes, कहते हैं ना ma'am. यार अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है या टीचर से अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। Yes, ma'am. अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, द पीपल Yes, ma'am. अपॉइंटेड हिम, लोगों ने उसको यानी कि ओहदा दिया किस चीज का, एज Okay. द प्रेसिडेंट। ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. लास्ट टू बताइए We इकरार। advised her. Okay, ma'am. We advised her. हमने उसे नसीहत दी. वेरी They गुड। will select her. वो उन्हें इंतखाब करेगी. नहीं गलत, फिर से बताइए। They will select her. वो उनका इंतखाब करेगी. करेंगे, नहीं, वो दे गे. सेलेक्ट कर रहे हैं, Yes. ठीक है, वो Yes, उसका ma'am. इंतखाब करेंगे। ओके, Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव गॉट द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पोजीशन फिर मैं बताती हूँ कि कौन सी चीज किसकी है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हम सबका है, ठीक है। पोजीशन से मुराद होता है मलकियत को शो करना, शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, कि कौन सी चीज का ताल्लुक किससे है। ऑलवेज यूज विद अ नाउन, नॉट अलोन। पोजीशन हमेशा, जाहिर सी बात है, आप किसी चीज का नाम लेंगे तभी तो बताएंगे ये मेरा है तुम्हारा है। मैं बोलूंगी दिस इज माई, तो भाई क्या चीज, दिस बैग इज माई, दिस कंट्री इज माइन, राइट। तो ठीक है, इट इज माई बैग, इट इज माई बुक। तो जब तक आप पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो आपको कोई नाउन का होना जरूरी है, ठीक है जी। कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर द वर्ब, और समटाइम आप इसको आफ्टर द वर्ब और बिफोर द वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सम केसेस। ओके नाउ, सो आई वांट दिस स्लाइड टू बी read by मिस यास्मीन। जी यास्मीन। Possessive adjective. Show जी, that something belongs to someone. Always used with a noun, not alone. Can be used before or after the verb. ओके। It is my book. She is your friend. You don't bring our book. हम्म, So जुमला we सही। didn't हाँ, we didn't bring our books. वेरी They गुड, paid their bills. Her वेरी गुड। books are on the table. Her chain is made of gold. अच्छा, अब आप एक काम कीजिए यास्मीन, दोबारा सेंटेंस पढ़ें और इस टाइम मुझे ट्रांसलेशन भी चाहिए उर्दू में। Yes, ma'am. It is my book. ये मेरी किताब है. वेरी She गुड। is your friend. ये तुम्हारी दोस्त है. We didn't bring our books. हम अपनी बुक्स नहीं ला सकते. नो नो They नो pa- नो 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 नो, वी डिडंट ब्रिंग आवर बुक, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, हम अपनी बुक नहीं लाए। जी नहीं, हम अपनी बुक्स नहीं लाए. जी, They paid their bills. उन्होंने अपना बिल अदा किया. एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर से पढ़िए सेंटेंस को। मैम, they paid their bills. नो, इट्स नॉट देयर, दे पेड दियर बिल्स। देखिए, देयर और दियर में थोड़ा सा फर्क होता है प्रोनाउंसिएशन का। देयर का मतलब होता है देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द स्कूल। दियर का मतलब पोजीशन होता है, दियर बिल, उन्होंने अपना बिल दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दबा के पढ़ते, दियर नॉट देयर, दियर देयर, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। दे पेड They दियर paid बिल्स। their bills. वेरी गुड, उन्होंने अपने बिल्स अदा किए. वेरी गुड। My books are on the table. मेरी बुक्स टेबल पर है. Her chain is made of gold. उसकी चेन गोल्ड की बनी हुई है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक यू, जबरदस्त, बेहतरीन। यहाँ पे ठीक है, आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की एग्जांपल लिखी है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ओके जी, नाउ देयर आर सम पैराग्राफ्स विद द सेम यूजेज जो हमने अभी किए हैं। तो इस पैराग्राफ को मैं मुकद्दस, आप प्लीज पैराग्राफ पढ़िए। Vihari is a teacher. Her father is a banker and her mother is a good housewife. Her father studies at Aneda यस, College and her sister works at Thames College. नो, Her टाइम्स ambition, कॉलेज। her ambition is to be a manager. यस, आगे वाला भी पढ़ें, शाबाश। I have so many friends. Their qualities are good. Their ideas are excellent. Their talents are unbelievable. Their ambitions are different. वेरी गुड, ठीक है जी, जबरदस्त। ओके, अच्छा, अब इसके ट्रांसलेशन बता सकती हैं लास्ट वाले की, जो सेकंड पैराग्राफ है। जी मुकद्दस, जी मिस मुकद्दस।
सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन चाहिए मुझे। Yes, I have so many friends. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। Their qualities are good. उनकी जो खूबियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। वेरी Their गुड, ideas are excellent. उनके ख्यालात जबरदस्त हैं। Their ओके, talents are unbelievable. उनके टैलेंट अनबिलीवेबल नायकीनी है। गैर यकीनी है, यानी कि उनके जो उनमें जो खुसूसियात है, टैलेंट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा गैर यकीनी है। Their ambitions are different. उनके ambitions are मकासद different. मकासद मकासद डिफरेंट है। सच्चा अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए मुझे मुकद्दस, यहाँ पे जो पहला वाला पैराग्राफ था उसमें आप देखिए है। Vihari is a teacher. ठीक है, it's the name of a girl because they are using obviously her for this. It means it's a girl. Her father is a banker and her mother is a good housewife. इनकी ठीक है। अच्छा अब ये हाउसवाइफ जो वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है मुकद्दस? के मीन्स के वो घर में तो रहती है, के मीन्स तो काम नहीं Okay. करती, के मीन्स Okay. घर। Can you tell me some synonyms for this word? क्या इस वर्ड की जगह हम जो खवातीन का जॉब नहीं करती या सिर्फ घर चला या घर को लुक आफ्टर करती है, क्या उनके लिए हम इससे कोई बेहतर वर्ड यूज कर सकते हैं? चलें, मुझे मैं नहीं पता। आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ आप सबके लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर मुकद्दस, फॉर एवरीबॉडी। इफ यू वांट प्लीज नोट डाउन। बहुत अच्छे वर्ड्स है। जो खवातीन घर पे रहती हैं और घर की देखभाल करती हैं, वी कैन कॉल देम होम मेकर्स। हम उनको हाउसवाइफ की जगह बेहतर वर्ड क्या है? होम मेकर्स। ठीक है। हम उनको डोमेस्टिक इंजीनियर्स भी कहते हैं। माय मॉम इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर, लाइक यानी वो घर पे रहती है, डोमेस्टिक इंजीनियर। यू कैन आल्सो कॉल देम you say domestic managers, ठीक है। You can also call them homemaker, full-time mom, stay at home moms, stay at home moms। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद आपके पास है यानी कि हम आम तरीके से तो बस ये हाउसवाइफ आप कह सकते हैं दे आर द चीफ डोमेस्टिक ऑफिसर ऑफ द हाउस, CDO। इवन CEO भी कह सकते हैं। माई मदर इज द CEO ऑफ आवर फैमिली। CEO का काम क्या होता है? सारी चीजों को मैनेज करना। और आप कह सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक गॉडियस। डोमेस्टिक गॉडियस मतलब होता है, गॉडियस मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही ज्यादा यानी कि अच्छे उसमें। और डोमेस्टिक मतलब घर को लुक आफ्टर करने के, एक तरह से आप घर की मालिक कह लें या कुछ भी इस सेंस में। ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच वी कैन यूज टू रिप्लेस दिस वर्ड हाउसवाइफ। लेकिन याद रखिएगा ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये प्रोनाउंस नहीं है। आप बोले मिसने तो कहा हाउसवाइफ की जगह डोमेस्टिक इंजीनियर लिख दो, इसका मतलब है वो भी प्रोनाउन हुआ। नो, ये तो सिनोनिम्स है उसका, यानी वो भी नाउन है और ये भी नाउन है, राइट। प्रोनाउंस तो उसकी जगह इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउंस स्पेसिफिक वर्ड्स ही होते हैं, जैसे हिज, हर, हिम, ठीक है, वी, दे, यू, योर, ये सब प्रोनाउंस होते हैं, राइट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ वी हैव गॉट नाउ पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये मलकियत को शो करते हैं, दैट टेल्स ओनरशिप and who owns something, can be used before the verb or after the verb। ठीक है, दोनों के तौर पे ये यूज हो सकता है, बिफोर और आफ्टर के उस पे। अच्छा इस स्लाइड को पढ़ने के लिए आई वुड लाइक, अच्छा इकरा, इकरा के नाम से दो आ रही हैं, ये कौन सी इकरा है? इकरा, दो स्टूडेंट्स, इकरा आपने दो फोन से ज्वाइन किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सी इकरा है? ये प्लीज अपना नाम बताइएगा। हेलो, Yes, ma'am. आप इकरा हैं? I just my mobile. Yes, ma'am. यू आर इकरा, ओके। और ये कौन है फिर? ये भी Yes, इकरा ही ma'am. है? ठीक है, ओके ठीक है, ओके, कंफ्यूजन दूर हो गया। ओके नाउ सो आई वांट इकरा टू रीड द स्लाइड फॉर मी। इकरा जी। Okay, ma'am. Uh, possessive noun for now. It is my book. राइट, This book is mine. They are your book. They are yours. This computer is here. Hers. हर्स, This house is theirs. ओके। अच्छा इसमें Hers. आपको क्या पोजीशन This किस तरह house शो is कर रहे हैं? हाँ, theirs. अगर आप इनको आखिर में इन प्रोनाउंस को ले जाएंगे तो आप इसको किस तरह करेंगे? मी, माय किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइन में।
योर कन्वर्ट हो माई जाएगा योर्स में, माइन में, और यस योर, ठीक है, और हर्स में, और दियर्स में, राइट। तो यू सी पाकिस्तान इज आवर Yes. कंट्री, पाकिस्तान इज आवर्स। जब मैं कंट्री यानी नाउन नहीं बोलूंगी तो मैं उसमें Yes. एस लगा दूंगी, ठीक है, ठीक है। दे आर योर Yes, बुक्स, दे आर योर्स, मैंने ऑब्जेक्ट हटा दिया, ठीक है। yes, yes. This is her Yes, ma'am. computer, this is hers, right? So both the ways you can say. Okay, Yes. there are some examples for possessive pronouns like my becomes mine, our become ours, your become yours, his become his, her become hers, and their become theirs, right? His change नहीं होता, Yes. okay, okay, और sometimes इस जगह him भी यूज कर लेते अगर context में सही बैठ रहा हो तो। Okay, now the next category, आज हम basically kinds of pronouns कर रहे हैं, right? So this is the next category, this is the next category for this, and ये कहलाती है रिफ्लेक्स। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जब हम कहते हैं ना क्या, मैं खुद ही अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ, आई आयरन माय क्लोथ्स माय सेल्फ, जोर देने के लिए, या आप इसको कह सकते हैं टू शो दैट समथिंग डिड समथिंग विदाउट एनी हेल्प, या बगैर मदद के आपने कोई काम किया हो, ठीक है, या एम्फसाइज करने के लिए भी हम सबसे रिफ्लेक्स प्रोनाउन की सबसे आसान पहचान क्या है, इसके आखिर में सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड लगता है, दैट्स इट। या आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, राइट। ओके जी, तो अब इस स्लाइड के लिए मैं बोलूंगी जी 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 मिस ईशा, ईशा जरा इसको पढ़िए, बल्कि ईशा का तो अभी हो गया था, मुकद्दस, मुकद्दस सॉरी सॉरी, मुकद्दस आप पढ़िए। मैम हमारा नहीं हुआ था, इकरा आप ही का हुआ था। अच्छा चलो, इकरा आपका नाम क्या है बेटा? मैम हमारा ईशा नाम है। ईशा और इकरा में, ओके ठीक है, ईशा आप कर लीजिए। To show that a someone did something without can help. Please louder, speak louder. To show that someone did something without any help. The door was definitely locked. I locked it myself. There was no one to help her. She cleaned the room herself. John reminded himself that he had to Reminded, not remind, reminded. reminded himself that he had to try harder. You are old enough to dress yourself. She broke her arm so she could not wash herself very easily. He has IT knowledge. He fixed his computer himself. I say myself in the mirror. You must know yourself. He Okay, blamed himself if for his mistake. okay. Next, last one. मैम लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ शो नहीं हो रहा है। अच्छा ओके, वी हर्ट आवरसेल्फ, ओके। अच्छा ईशा, अब मुझे इनमें से जरा थोड़ी सी ट्रांसलेशन करके बताएं, मैं जुमला बोल रही हूँ एंड यू हैव टू टेल मी द ट्रांसलेशन, राइट। द डोर वाज डेफिनेटली लॉक्ड, आई लॉक्ड इट माय सेल्फ। The door was definitely locked. I locked myself. दर, दरवाजा 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 बंद था और लॉक मैंने ही किया था। देखिए इसको आप अच्छे अल्फाज में बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं, थोड़ा सा और अच्छे अल्फाज में कह सकती थी। डेफिनेटली का मतलब होता है यकीनन, दरवाजा यकीनन बंद था, मैंने खुद लॉक किया था, मैंने खुद लॉक किया ठीक है, था। ओके। अच्छा नेक्स्ट, देयर वाज नो वन टू हेल्प हर, शी क्लीन्ड द रूम हरसेल्फ। There was no one to help her. किसी ने मदद नहीं की थी हेल्प काम करने में। मैंने खुद अपना रूम साफ किया था। नो, शी नो, आप जुमले को पहले गौर से सुनिए, देयर वाज नो वन टू हेल्प हर। मैंने वहां कोई भी नहीं था मदद के लिए उसकी, लिहाजा उसने क्या किया, अपना रूम खुद साफ किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज जॉन रिमाइंडेड हिमसेल्फ दैट ही हैड टू ट्राई हार्डर। जी, जॉन ने अपने आप को क्या याद दहानी कराई? जॉन रिमाइंड मी
जी, जॉन ने अपने आप को याद दहानी कराई कि ही हैड टू जॉन ट्राई ने हार्ड। जॉन ने खुद रिमाइंड करवाया था टू ट्राई ट्राई हार्डर। मुश्किलात है। उसने देखे, जॉन रिमाइंडेड हिमसेल्फ, जॉन ने अपने आप को ये बात दोबारा याद दहानी कराई, ही हैड टू ट्राई हार्डर, कि उसको मेहनत से काम करना था। ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट वी हैव यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योरसेल्फ, यानी आप इतने बड़े हो कि आप खुद कपड़े पहन सकते हो। आप बूढ़े आप काफी बूढ़े हैं, आप काफी बूढ़े हो। ड्रेस योर नो नो, इट्स नॉट लाइक ईशा, माय बच्चा। ओल्ड का मतलब ठीक है बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड इनफ का मतलब ये है बड़े होना, इतने बड़े होना। आप जैसे कोई 6 साल का बच्चा आपके पास आए, मम्मा मुझे ये शर्ट पहना दे, तो आप उसको बोलेंगे यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योरसेल्फ, तुम इतने बड़े हो गए कि खुद कपड़े पहन सकते हो। ओके, ये वो बूढ़े वाला बड़ा होना नहीं है। आपको कपड़े पहनाने नहीं काफी आप इतने बड़े हो, अब मैं आपसे बोलूं यू आर आप ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तुम इतनी बड़ी हो कि अपना ख्याल खुद रख सकती हो। यू आर ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम इतनी बड़ी हो कि अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हो। ठीक है, आपको कपड़े पहनाने के लिए काफी बूढ़ा। आप यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आप इतने बड़े हैं कि खुद कपड़े पहन सकते हैं। यस मैम। ठीक हम है ये बोलना चाह रहे थे आपको कपड़े पहनाने के लिए काफी बूढ़े हम बार बार लगा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा। ओके, अच्छा ये लास्ट वाला सेंटेंस, सेकंड लास्ट वाला, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज मिस्टेक। he blamed उसने himself खुद उसने खुद इल्जाम लगाया तुम्हारी गलती है। no no no, he blamed himself, उसने अपने आप को इस चीज का इल्जाम दिया। किस चीज का? फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों का इल्जाम उसने अपने आप को खुद दिया कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं उन गलतियों का। मैंने आपसे कहा है कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये इम्फसाइज यानी कि जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि द डोर वॉज डेफिनेटली लॉक, दरवाजा यकीनन बंद था। क्यों? आई लॉक्ड इट माई सेल्फ। आप ये शॉक करके बोलते ना, कोई बोले कि भाई वेयर आर द कीज, यू सी द कीज मस्ट बी हियर, आई हैव केप्ट माई सेल्फ, मैंने तो खुद चाबियां भी यहाँ रखी थी। ठीक है, तो ये जोर देने के लिए रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है, बस इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ वी हैव गॉट रिप्लेस द नाउन विद प्रॉपर प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक जुमला दिया, एक पैराग्राफ दिया हुआ अबाउट अ गर्ल। ठीक है, इनका क्या है कि इनका नाम बार बार लिया जा रहा है, राहीला राहीला राहीला। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, ठीक है, इकरा अनम्यूट कीजिए अपने आपको। राहीला की जगह कौन सा प्रोनाउन लगेगा? शी लगेगा। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, स्क्रीन को देखिए और डायरेक्ट पहले जुमले के अलावा सेकंड जुमले से राहीला की जगह शी लगा के सारा रीड कीजिए क्विक। This is Rahila. She is 25. He is शाबाश। from Colombo. He is an assistant manager. एक्सक्यूज He मी is मैडम मैडम मैडम, राहीला लिखा है, राहील नहीं लिखा। ही क्यों बोल रही है? शी। okay. Okay, sorry. he he is he is शी she शी 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 राहीला को ही बनाना है। इकरा क्या हो गया है? yeah, माना सैटरडे नाइट है, कल छुट्टी है, लेकिन yeah. इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। चले, Okay, her hobbies reading books. Yes. जी 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 जी। Her boyfriend is a doctor. ओके, Her parents are in London. Uh, she likes uh, she likes Rahila dog very much. नहीं, she likes Rahila dogs very much. राहीला डॉग को कैसे करेक्ट करेंगे, जल्दी से बताएं। राहीला लाइक्स राहीलाज डॉग्स वेरी मच। राहीलाज लाइक, Okay. शी लाइक्स She likes dog very much. हर डॉग वेरी मच। ओके, अपने ही कुत्ता उसे बहुत पसंद है। ओके, नाउ वी हैव गॉट यस अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन हियर, सो आई थिंक आई मस्ट डिवाइड इट इनटू, सब लोग दो दो जवाब दे। ठीक है, सो हम शुरू कर रहे हैं
मुकद्दस आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? मुकद्दस जी शुरू के दो, जल्दी से करेंगे मुकद्दस, Yes. टाइम कम है। I like Ali, but Ali does not like pets. फिर वही डज नॉट, डजंट। My brother lives in Ali doesn't like, Candy. I like Ali, हाँ don't आराम आराम से। I like Ali but Ali doesn't like pets. me। मुझे अली Yes. पसंद है लेकिन अली को मैं पसंद नहीं हूँ। नहीं, but Ali doesn't like. मैं मुझे समझ चाहिए कि क्या करते हैं। देखिए दो तरीके, आप क्या कर रही हैं, आप क्या रेड वाले वर्ड की जगह यूज कर रही है, तो आप बोलेंगे आई लाइक अली बट ही डजंट लाइक, और फिर आगे जो भी लिखना चाहे। जो रेड में जो वर्ड है ना, जो नाउन है, उसकी जगह बेसिकली आपको प्रोनाउन फिट करना है, ठीक है जी। Okay. I like Ali, but Ali doesn't like them. हाँ कुछ भी हो सकता है, वेरी गुड, आगे चलिए। माय ब्रदर की My जगह क्या brother यूज lives करेंगे? in Delhi. Brother, her, माय ब्रदर की जगह क्या आएगा? him very often. I नो don't नो see him नो very नो, often. अगेन प्लीज, अगेन My brother, जी। माई ब्रदर लिव्स इन कैंडी, आई डोंट सी हिम वेरी ऑफन, मैं उसको बहुत जल्द जल्द नहीं देखती हूँ। ओके ओके, मैंने आपको बोला था him. आप शुरू में हिम लगाई थी इसलिए मुझे वो कंफ्यूजन हो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। यास्मीन 3 और 4 आप करेंगी जी। मुकद्दस अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। This worksheet is hard. I'm not sure I can do it. वेरी गुड, फोर्थ वन। How are you? How are your parents? I didn't see them for ages. और एजिस एक बेसिकली वर्ड है जिसे कहते हैं बहुत अरसे से। ओ माय गॉड, वेयर आर यू माय फ्रेंड, आई हैवंट सीन यू फ्रॉम ए फॉर एजेस, मैंने तुम्हें बहुत अरसे से नहीं देखा, ठीक है वेरी गुड, ओके बेहतरीन। ओके नाउ यास्मीन अनम्यूट योरसेल्फ। यास्मीन ने किया तभी, यस यास्मीन। 5 और 6। जी 5 एंड 6। मैं पढ़ूं? आपने कर लिया यास्मीन? जी अभी किया है। ओके ईशा, ईशा दे। जी ईशा। मैम 5 और 6 करना है ना? जी जी 5 6 और 7 भी पढ़ लीजिए, 3 पढ़िएगा। मैम इसके अंदर अस आना है। आप पढ़िए, पहले सेंटेंस पढ़िए, आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या आएगा। 5 पढ़िए। Alexa has expensive a car. Alexa use us careful. No, 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 no. Alex has an expensive car. Alex uses dash carefully. कार की जगह क्या लगाएंगी आप? मैंने आपको बताया था कि जब हमें जेंडर पता नहीं होता किसी चीज का, कि वो बॉय है या गर्ल है, मैन है या वुमेन है, तो हम इट लगाते हैं। अब कार का तो कोई जेंडर नहीं होता, ये थोड़ी कि लाल वाली कारें खवातीन होंगी और काली वाली कारें मर्द होंगे, तो लिहाजा हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इट। Alex has an expensive car. Alex uses it carefully. Okay? Yes, ma'am. Okay. Next बताइए ईशा। This dress looks a bit small. Do you think it will fit them? No, it will fit you. Her, ठीक है, it will fit you. you. जी 7th। Star Wars is a fantastic movie. I love watching. I love watching us. I love watching it. मूवी की बात हो रही है। मूवी आपको पता है कि मेल है या फीमेल है? नहीं मैम। अच्छा एक और बात बताइए ईशा, क्या ये गलत लिखा हुआ है कि स्टार वॉर्स और फिर इज लिखा हुआ है? हम तो कहते हैं कि जो आपका प्लूरल होता है उसके साथ आर लगा होता है, तो क्या ये जुमला गलत है?
मैम ये गलत लग रहा है सेंटेंस। बेटा ये गलत नहीं है, क्यों? स्टार वॉर्स जो है मैम बेसिकली, नाउन, नहीं मैम ये वो, नाउन के अंदर सेंटेंस। देखो बेटा, स्टार वॉर्स बेसिकली यहाँ पे स्टार की तादाद या वॉर की तादाद को नहीं शो करा, बल्कि एक मूवी का नाम है, एक किताब का नाम है, तो ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? तो ये सही है, स्टार वॉर्स इज अ फैंटास्टिक मूवी, मूवी का नाम है ये, तो ये पूरा एक ही सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ईशा। ओके, नाउ हु इज लेफ्ट? इकरा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी इकरा, लास्ट के 3 Sir सेंटेंसेस आप called करेंगे। you. Vimal sir called you. Vimal sir want to speak with him. स्पीक विथ, Or नहीं देखिए जुमला गौर से पढ़े, 2 सब्जेक्ट इसमें, निमल सर कॉल्ड यू, okay, ma'am. यू से बात करना चाह रहे हैं निमल के सर, Okay. Vimal sir want to speak with you. विद यू, विद यू, Yes. ठीक है? Yes. यहाँ पे कोई पोजीशन तो Where? नहीं शो करे ना, Yes. मलकियत तो नहीं शो करे, लिहाजा विद यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट 9th। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Where is my textbook? I can't find mine. आई कांट फाइंड इट, टेक्स्ट बुक के लिए लगेगा ना। Yes, हेलो, आखिरी वाला पढ़िए। yes, sir. Okay. Hello. Do you remember me? I am Mark. वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आप लोगों को तेजी से पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में से जो अगर कोई कंफ्यूजन है तो हट जाए। आई लाइक अली बट अली डजंट लाइक मी। My brother lives in Kandy. I don't see him very often. If you want to make correction in your answers, you can, okay? This worksheet is hard. I'm not sure I could do it. How are your parents? I didn't see them for ages. Parents plural hai, lihaza them for ages. Alex has an expensive car. Alex uses it carefully. This dress looks a bit small. Do you think it will fit you? Star Wars is a fantastic movie. I love watching it. Nimal sir called you. Nimal sir wants to speak with you. Number 9, where is my textbook? I can't find it. लेकिन अगर ये जुमला होता where are my textbooks, तो फिर मैं बोलती I can't find them. बुक के लिए मैंने इट लगाया, ज्यादा होते तो देम लगाती। हेलो, डू यू रिमेम्बर मी? आई एम मार्क। ओके, सो इट्स लाइक दिस। नाउ यहाँ पे भी हमें कुछ प्रोनाउंस लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जेसिका इज, इसका आंसर जो हमें यास्मीन देंगे। ओके, स्टार्टिंग 3 यास्मीन आप करेंगे। जेसिका इज रियली नाइस, आई लाइक डैश अलॉट। I like him a lot. जेसिका लड़की, आंटी, Sorry, I like her. अलॉट। ओके, I am lost. You can कैन यू tell टेल, me. कैन यू टेल मी? Can you tell me how to get to the post office? वेरी गुड, शाबाश। नंबर 3, I left my phone on my table. You can you get it? वेरी गुड, शाबाश। ओके, नाउ ईशा, ईशा अब ईशा, यस, अब 4 5 6 ईशा। Is Sarah boyfriend nice? I don't know him. वेरी गुड, शाबाश। नंबर 5, I am off today. I am off today. Do you want to go a riding with me? डू यू वांट टू गो राइडिंग विद मी? वेरी गुड। ओके, नंबर 6, We want to book a flight. Can you help me? नो, फिर वही बात, कैन बुक, वी वांट टू बुक, वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प अस, ठीक है? कैन यू हेल्प अस। फिर से दोबारा जुमला बोलिए We ईशा। want we want to book a flight. Can you help us? वेरी गुड। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है, इकरा। मुकद्दस और इकरा रह गए ना, तो कितने रह गए हमारे पास? 2 मुकद्दस करेंगी, ठीक है? मुकद्दस, फिर 2 इकरा करेंगी, ठीक है? चलिए, मुकद्दस 7 और 8 आप करेंगी। Okay. This terrace is really crowded. I don't like it. वेरी गुड, I I see my friends every day. I always have lunch with them. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा इकरा, नाउ इकरा स्टार्ट। इकरा जी, लास्ट के 2 आप करेंगी इकरा, 9 और 10। जी इकरा।
9 and 10. Yes, ma'am. जी. We have just arrived at the station. Can you pick us up? English Can is you fun to learn. I really like can you it. please can you pick us up? We के साथ us. ठीक है? Yes. Okay, last Us. one. Yes, ma'am. English is fun to learn. I really like it. Okay, English is fun to learn. I really like it. Okay, very good. Okay, now Like. thank you so much. Okay, now there are some now the next second part of the slide is about WH questions. WH questions means when you are मैंने आपसे बताया था what, where, when, which, why, how, they all are known as WH words. ठीक है? इसको भी how को भी हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें WH सीक्वेंस से तो नहीं आता लेकिन बहरहाल आता है. मीनिंग्स क्या है और एग्जांपल्स. What? Asking for information specifically something. What is your name? What is your father's name? What's your school name? Right? Where का मतलब जब आप जगह के बारे में बात कर रहे हो. Where do you live? Where are you going? Where is Pakistan on the map of the world? Right? When? जब टाइम का जिक्र हो. पहला क्या है? इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में. Where? जगह के बारे में बात करना. When? टाइम के बारे में बात करना. Which मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों में से किसी चीज को वो करना. और why का मतलब वजह बताना. How का मतलब किस तरह कोई काम किया गया वो बताना. ठीक है? Where refers to the place. Where are you going? When refers to time, a time that something happens. When is your birthday? Which means asking for information specifically one or more people or things from a definite set. Which is my table. Which fruit will you like to have from the dish? Right? Why का मतलब क्या वो reason refers to the reason. Why did you call me? Why did you come to see me again? I told you not to come. Right? How? Ask for the way something is done. How are you doing? How's your father? How did you pass the test? ठीक है? How will you help me if I ask for the help? How many quantity को show करता है और how much ये countable है या uncountable है. Remember, refer to quantity, but how many में जो चीजें आप गिन सकते हैं. How many toffees did you eat? How many brothers do you have? How many siblings do you have? How many houses do you have? much जो है जो uncountable noun होता है. How much money do you? मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके मनी जो होता है उससे हम क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं. ठीक है? बट रुपीज काउंटेबल है. 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज. ओके? देन वी हैव गॉट हाउ फार, मतलब डिस्टेंस को रिफर कर रहा है. हाउ फार इट फ्रॉम गैली टू कैंडी. हाउ ओल्ड, एज को रिफर कर रहा है. हाउ ओल्ड आर यू. हाउ लॉन्ग, लेंथ को कर रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट और उसके बीच की ड्यूरेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी. आप कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो. हाउ लॉन्ग द क्लास विल गो. ओके? सो इस तरह. हाउ ऑफन refers to frequency. यानी कितनी दफा. आई ऑफन गो टू माई मदर्स हाउस ऑन सैटरडेज. यानी मैं हर सैटरडे को. ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी वो बता रहे कि कोई काम आप कितनी दफा रिपीट करते हो. ठीक है? इन अ पर्टिकुलर टाइम. हाउ ऑफन, इसे ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है. रेफर्स टू फ्रीक्वेंसी. हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज. आप कब कब मूवी देखते हो. ठीक है? नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू डू नाउअडेज. व्हाट काइंड ऑफ वर्क. व्हाट करना. इसको पढ़ते कैसे, नेटिव इंग्लिश वाले कैसे पढ़ते. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू डूइंग. व्हाट काइंडा, काइंडा. ओके? व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू डूइंग नाउ. आजकल आप क्या काम कर रहे हैं, किस किस्म का. वेयर हैव यू बीन लास्ट टाइम. पिछली दफा आप कहाँ पर थे. ठीक है? हाउ डिड यू राइट इट. आपने इसको कैसे लिखा. हाउ फार इज इट फ्रॉम निटोम्बुला बुआ टू कोलंबो. ये दोनों जगहों में कितना फासला है, कितनी दूर है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कोलंबो. कोलंबो पहुंचने तक हमें कितना टाइम लगेगा, या कितना वक्त लगेगा, दरकार होगा. हाउ मच मनी डू यू नीड. आपको कितने पैसों की जरूरत है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल राइट द एग्जाम. कितने बच्चे एग्जाम्स देंगे या एग्जाम में लिखेंगे. हाउ ऑफन डू यू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. आप कब कब और कितनी अक्सरियत से आप एक्सरसाइज करते हो मॉर्निंग में, कब कब. ठीक है? व्हेन. हाउ ओल्ड इज योर फ्रेंड. आपका दोस्त कितने साल का है. So all these are called WH questions. How long, how far. Okay. Now here again we are having some more examples in a question way. ठीक है? Who, asking for a person. For example, who took my pen. मेरा पेन किसने लिया. Who has done this. ये किसने किया. Who wakes up early morning. सुबह सुबह कौन उठता है. Remember, just ponder over my translation. Who took my pen. मेरा पेन किसने लिया. ठीक है? क्यों पास्ट इंडेफिनिट है.
हु हैज डन दिस, ये किसने किया है, परफेक्ट टेंस, राइट। देन वी हैव हु वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, ये रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, आदत की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, यानी कौन सुबह बहुत जल्दी उठता है, ताहे तीहे ते। देन वी हैव गॉट whom, आस्किंग फॉर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, whom did you see, तुमने क्या देखा, whom does she love, वो किससे प्यार करती है, ठीक है। और पर्सन के मुतालिक हम यूज करते हैं तो हम whom यूज करते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो हम whom ही यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम with लगा देते हैं, with whom is she going, वो किसके साथ जा रही है, with whom do you study, तुम किसके साथ पढ़ती हो, ठीक है। टू whom, ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप लगाना चाहिए, टू whom did you address this letter, आपने किसको वो खत लिखा था, ओके। टू whom will I give this book, मैं किसको ये किताब दूंगी, whose का मसला है, asking for ownership, भाई अगेन पोजीशन, ये किसका है, whose pen is this, whose pen is this, right, whose book is this, ये किसकी किताब है, whose turn it today, किसकी बारी है आज, right. So you are getting, by this way we can just go for. Now we have got some examples of who, whom and whom. So I would like Mukaddas to please read the slide for me. Mukaddas, examples पढ़िए please. Who made this cake? Who is But the black Mukaddas, sheep? Mukaddas, I want the translation also please. Okay. Ji Mukaddas, you have to do two starting sentences. Who made this cake? जी मुकद्दस, मैम मेरी आवाज आ रही जी आपकी आवाज आ रही है हमें, आप स्टार्टिंग टू सेंटेंसेस तो पढ़िए और उसकी ट्रांसलेशन भी बताइए। Who made this cake? ये केक किसने बनाया? वेरी Who is गुड। the black sheep in this class? Black sheep means ब्लैक शीप बेसिकली एक किस्म का इडियोमैटिक स्ट्रक्चर या फ्रेज आप कह ले, जिसका मतलब होता है गद्दार। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लैक शीप इन yes. आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत सारे गद्दार हैं। अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी ब्लैक शीप्स नहीं होगा, याद रखिए शीप एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल भी शीप ही होता है, एस नहीं लगता। मैंने आपको इस तरह के नाउन कराए हैं, राइस है और सब केसेस में फिश है, ठीक है, जिनके प्लूरल्स नहीं बनते बल्कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में वो सेम काम करते हैं। तो ये आप कभी नहीं बोलेंगी कि हाउ मेनी ब्लैक शीप्स आर देयर इन दिस क्लास, आप कहेंगी हु इज या हाउ मेनी ब्लैक शीप आर देयर इन द क्लास। शीप पे ज्यादा बहस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दोबारा पढ़िए मुकद्दस। Who is the black sheep in this class? मीनिंग, जी मुकद्दस, व्हाट इज द मीनिंग। एक क्लास में कौन गद्दार है? क्लास में कौन गद्दार है, ठीक है, ओके। नाउ ईशा, ईशा बच्चा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ये 3 सेंटेंसेस आप करेंगी ईशा, हु और हुम वाले, कम ऑन। किसके पास पहले इंग्लिश, पहले इंग्लिश, पहले इंग्लिश। who has thousand, किसके पास 1000 रुपीस है नाउ, टू नाउ का मतलब क्या है, चॉकलेट अभी का नाम भी है ना, हाँ अभी। अभी किसके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है। टू whom did the price को, कीमत किसके पास गई है, कीमत क्यों, प्राइस का मतलब तो होता है इनाम। इनाम किसके पास गया है। वेरी गुड। टू whom डिड द प्राइस गो, इनाम किसके पास गया है, ठीक है, ओके। यस नेक्स्ट एक और करें। For जी whom are you waiting? तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वेरी गुड, फॉर whom आर यू वेटिंग, वेरी गुड। यास्मीन, लास्ट 4 सेंटेंसेस आप करेंगी। with with whom are you going to the party? आप Very किसके साथ पार्टी पे जा रहे हो? जी जी। With whom is he catching now? Sorry, नो, chatting now. क्या मतलब है, चैटिंग का मतलब क्या है। बात करना। और इसी से मैंने आपको लफ्ज बताए थे बातूनी के लिए, पता है आपको बहुत सारे वर्ड बातूनी लोगों के लिए क्या होते हैं, कोई सिनोनिम बता सकते हैं मुझे बातूनी लोगों के लिए।
टॉकेटिव होता है, और मैंने बहुत सारे बताए थे। कल भी पढ़ाया था हाँ अभी पढ़ा था हमने वो। बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, कमॉन कमॉन। टॉकेटिव के लिए बहुत सारे सिनोनिम, फॉर एग्जाम्पल आप उसको कह सकते हैं वर्बोस, ठीक है, आप कह सकते हैं उसको चैटरबॉक्स, ठीक है, आप इसके अलावा उसको कह सकते हैं लाइक गैरुलस भी कहते हैं। गैरुलस मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा फालतू बातें करने वाला। लुकोशियस भी कहते हैं, लिक्वेशियस भी ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, ठीक है। तो आप बहुत सारे ये वर्ड्स है। माउदी भी कहते हैं, माउदी, माउथ के आगे वाई लगा दे, माउदी, ही इज वेरी माउदी, he keeps on talking, and you see, I was already having a headache and he was continuously talking. He's so talkative, he's so chatterbox, right? तो इस तरह आप बोल सकते हैं। ओके यास्मीन, यस, तो लास्ट टू, whose car is this, ये कार किसकी है? वेरी whose गुड books are these, ये बुक्स किसकी हैं? मैडम, किताबें। ये किताबें किसकी हैं? बुक्स की इंग्लिश तो बुक्स ही होती है। इवन माय यंगेस्ट डॉटर, शी सेज मम्मा आप जो है ना वो मिक्स करके उर्दू और इंग्लिश, लाइक शी वाज आस्किंग मी मम्मा आप जो है ना केक की सख्तनेस चेक करें। तो आई आस्क्ड हर कि सख्तनेस क्या होता है। सख्त तो उर्दू का वर्ड है, आपने उसके आगे नेस लगा दिया। तो हम लोग जो है ना इस किस्म की वो करते रहते हैं इंग्लिश के साथ, टांग तोड़ते रहते हैं इंग्लिश के। ओके ना, अब आपके पास आपका होम असाइनमेंट है, द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। what you have to do, spot the pronouns in this, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप लोग घर में जब इस स्लाइड को करें तो आपको आसानी हो। John lived in a village. John loved all the people in John's village. ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे कोई प्रोनाउन लगाना चाहिए, जॉन्स विलेज। क्यों? क्योंकि जॉन हमने एक दफा इस्तेमाल कर लिया, अब जितनी दफा भी जॉन आएगा उसकी जगह हमें कोई, पहले मैं इसको जॉन के साथ रीड करूंगी और फिर मैं उसकी करेक्ट प्रोनाउंस के साथ रीड करूंगी, ठीक है। Okay, I'm starting again. John lived in a village. John loved all the people in John's village. John realizes that there was no doctor in John's village to treat people who were suffering from various sicknesses. John decided to study and open a small clinic in John's village. Now John is giving free medicine to John's villagers. Medicine because John wanted to become a doctor and John's concern is to heal sick people. Therefore, John worked hard and John did everything John's self. Sometimes John's friends also helped John to achieve John's dream. Finally, John became a doctor. ये क्या हुआ, ये मैंने एक बहुत ही बुरे अंदाज से इसको पढ़ा क्योंकि जॉन 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 कितना वियर्ड लग रहा है ना। तो नाउ वी आर डूइंग इट विथ करेक्ट प्रोनाउंस। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, के साथ करेंगे। ओके, जॉन लिव्ड इन अ विलेज. He loved all the people in his village. He realized that there was no doctor in his village to treat people who were suffering from various sicknesses. He decided to study and open a small clinic in his village. Now he is giving free medicine to his villagers. John's medicine because John, he wanted to become a doctor and his concern is to heal sick people. Therefore, he worked hard and he did everything himself. Himself. Sometimes his friend also helped him to achieve his dreams. Finally, he became a doctor. Is it clear to everyone? किसी को कोई भी सवाल करना है तो raise your hand. And you see, because this was the last slide of the day class today, if anyone has got any kind of question, you can ask me. Please go ahead. जी जी, किसी का कोई सवाल है? ईशा, ईशा क्लास के बारे में कुछ पूछना चाहती है, कुछ सवाल? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। अच्छा, और ये क्या नाम है, मुकद्दस बच्चा, सब क्लियर है? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा वोकैबुलरी को दोबारा से देख ले एक नजर, हमारे पास 2-4 मिनट है, ठीक है। ओके, चलें इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। पहला वर्ड हमारे पास था कैटास्ट्रोफी। What was the first word? आप लोग प्लीज मेरे साथ आफ्टर, डोंट unmute yourself, but say after me. Catastrophe, please. Catastrophe, तबाही, catastrophe, right? Surreal, surreal, गैर हकीकी,
surreal गैर हकीकी, notorious 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 बदनाम, notorious बदनाम, notorious बदनाम, ठीक है। labyrinth labyrinth भूल भुलैया, labyrinth भूल भुलैया। malicious malicious बदनीयती पर मबनी, malicious malicious बदनीयती पर मबनी। sagacity sagacity मैंने आपको बताया वर्ड निकला है sagacious से, समझदार, विजडम वाला, ठीक है, sagacious। sagacity समझदारी। audacity audacity दिलेरी, बहादुरी, promptness courage, ओके। zenith zenith मतलब जीनत, किसी चीज की खूबसूरती को बढ़ाने वाली चीज, राइट। नाउ जो फ्रेजेस हमने आज किए थे उनमें था हमारे पास सबसे पहले वॉकिंग ऑन एग शेल्स, जिसका मतलब है किसी काम को बहुत ज्यादा एहतियात से करना। he was walking on eggshells when talking about his friend's deceased wife. वो अपने दोस्त की फौतशुदा बीवी के बारे में बात करते वक्त बहुत मोहतात था। don't make castles in the air, don't make castles in the air, you need to act as well। तुम्हें सिर्फ हवा में किले नहीं बनाने की जरूरत है, ये नहीं बनाओ, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, आपको अमल की भी जरूरत होती है, ठीक है। देन वी हैव द लिटिल चाइल्ड ब्लू अ किस टू हर मदर, छोटे बच्चे ने, बल्कि ये ठीक है, ये यहाँ पे ना हर मदर लिखा है, इसका मतलब है बच्ची है, ये बच्चे नहीं बच्ची, ठीक है, आप बच्ची के सेंस में लो कि छोटी बच्ची ने अपनी माँ को बोसा दिया। द लिटिल चाइल्ड ब्लू अ किस टू हर मदर, अगर हिज मदर होता तो इसका मतलब है लड़का है, बच्चा, because child is a kind of a word which we use for both the genders, for boys and girls, okay। हम जब किसी के यहाँ कोई बेबी होता है तो हम उससे पूछते हैं कि बॉय हुआ या गर्ल हुआ, तो जैसे यू सी द बेबी इज अ बॉय, बेबी का लफ्ज दोनों के लिए यूज होता है, द चाइल्ड के लिए भी सिमिलर दोनों यूज होता है। शी वॉज कवर्ड इन ग्रीन पेंट फ्रॉम हेड टू टो, वो सर से पांव तक सब्ज रंग में ढकी हुई थी, वो सर से पांव तक सब्ज रंग में ढकी हुई थी, ठीक है। कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, इनको बहुत ज्यादा यूज किया करें अपनी नॉर्मल स्पीक में ताकि आप प्रैक्टिस करें। नाउ व्हाट डू यू मीन यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, यू आर ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, आपका क्या मतलब है कि आपने इम्तिहानात की तैयारी नहीं की, आप बगैर तैयारी के आ गए हो, ठीक है, के आ रहे हो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच क्लास एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑल द टाइम, आई एम प्रेजेंट, ओके। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यू ऑल कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच।